Good evening. So today we will start next chapter of modern history, and chapter is that the pillars of modern India. Pillars of modern India or modern Indian history. Modern Indian history. So there is one important question: why it is called modern? Why it is called modern? इसे modern क्यों कहा जाता है? So students, modern India or modern history have four important pillars. Modern India have four pillars. First one is conquest of India. Second one is modern education. Third one is modern administration. And fourth and last is socio-religious reforms. Socio-religious reforms. So on the basis of these four pillars, we can say it's modern India, or this is the process of modernization in India. Okay? So out of these four pillars, conquest of India led to colonialism, or rise of colonization. First is conquest of India. Conquest of India led to colonialism or rise of colonization in India. These three factors or these three pillars, like modern education, modern administration, socio-religious reforms, led to nationalism, clear? कॉन्क्वेस्ट इंडिया का रिजल्ट होता है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनिज्म इंडिया के अंदर। इन तीनों पिलर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग होती है, राइट? सो बोथ colonialism and nationalism are completely different ideology or opposite ideology. Completely different ideology or opposite ideology. So, colonialism में colonialism के अकॉर्डिंग colonialism कहता है like colonialism exploitation of resources of colony
for their motherland or country. Colonialism, exploitation of resources of colony for their motherland. And other side, nationalism में nationalism कहता है like nationalism, protection of resources of India in favor of countrymen for social value. यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करती है, वहीं पर इंडिया के अंदर दूसरी तरफ जब नेशनलिज्म डेवलप होता है, नेशनलिज्म का थीम इंडिया के लोगों के बीच में डेवलप होता है, लोग यहाँ पर अवेयर होते हैं, उनको ये फील होता है कि इंडिया के रिसोर्सेज हमारे अपने रिसोर्सेज है, तो यहाँ पर ये उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और उन रिसोर्सेज को ये चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के भले के लिए वो उनका यूज हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देन इसके बाद colonialism and nationalism had conflicted with each other because opposite ideology और opposite ideology की वजह से because nationalism and colonialism दोनों opposite ideology है, opposite ideology की वजह से यहाँ पर struggle create होता है and this struggle rise a national movement in India, और यही स्ट्रगल इंडिया के अंदर rise a national movement in India, पहले नेशनलिज्म डेवलप होता है, देन उसके बाद दोनों आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पर स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल की वजह से इंडिया में नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है एंड दिस नेशनल मूवमेंट gave rise India as a nation. This national movement gave rise India as a nation. तो यहाँ पर इंडियंस के बीच में नेशन का थीम डेवलप होता है, क्लियर? तो इन 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग आप देखो, फर्स्ट पिलर was conquest of India, second pillar was modern education, third pillar was modern administration and fourth pillar was socio-religious reforms. अब इन पिलर्स के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं? कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया लेड टू कॉलोनिज्म और राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. देन अदर दीज 3 पिलर्स राइज टू नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर नेशनलिज्म डेवलप होता है. देन कॉलोनाइजेशन, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यहाँ से यूरोप लेके जाते हैं, इंग्लैंड लेके जाते हैं. देन अदर साइड जब इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होता है तो नेशनलिज्म प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेज और इंडियन रिसोर्सेज
in favor of Indian peoples, Indian citizens, for welfare, उनके welfare के लिए उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट आइडियोलॉजी के बीच में एक स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल की वजह से ही इंडिया के अंदर डेवलप होता है नेशनल मूवमेंट, एंड दिस नेशनल मूवमेंट गिव राइज अ थीम ऑफ इंडिया एज ए नेशन। तो इंडिया में नेशन का थीम डेवलप होता है। सो स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस, सो स्टडी ऑफ this process is called Indian modern history। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? दैट इज क्लियर। इस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया का कंसेप्ट डेवलप होता है। Then students, now we are talking about the syllabus of modern history, कि modern history का syllabus कहाँ से start होता है। Modern history divided into two parts. First part is known as early modern history, early modern history from 1707 to 1885. Then second part is Indian national movement from 1885 to 1947. तो एक अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, अर्ली मॉडर्न इंडिया और सेकंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है। देन सिलेबस को हम ब्रीफली इसकी स्टडी करते हैं। ये रिमूव कर देते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री का और मॉडर्न इंडिया का हम इसका ब्रीफ सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा तो समझना। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ से मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग होती है। 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब वाज द मुगल एम्परर। तो 1707 से लेके और 1761 यहां पर देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यहां पर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब यहां पर जो पावर है उसका वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अगर एक तरफ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है तो उस पावर को कौन गेन करेगा। सो इस पार्ट को फिल करने के लिए यहाँ पर राइज ऑफ रीजनल पावर्स। तो मुगल एम्पायर का 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है और उसकी जगह पर राइज होता है रीजनल पावर्स का। रीजनल पावर्स में लाइक बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मराठास, इनका राइज होता है। और यहाँ पर एक पावर जो है ये पैरेलल चलती है बट ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करती है और यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। देन उसके बाद 1761 में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, दैट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली।
between Maratha and Ahmad Shah Abdali। यहां पर मराठा कंप्लीटली हार जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली मराठा की पावर को कंप्लीटली क्रश कर देता है। जो मराठा दिल्ली के ऊपर रूल करने के सपने देख रहे थे, अब ये पावर भी डाउन हो जाती है। तो 1761 से लेके और 1800 तक का जो फेज है मॉडर्न इंडिया के अंदर, यहाँ पर चेंजेस आते हैं। लाइक मुगल एम्पायर तो पहले डिक्लाइन हो गया, यहाँ पर जो रीजनल पावर्स थी इस फेज में, इनका जो राइज था, अब यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर्स, डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर्स। अब यहाँ पर रीजनल पावर्स का अगर डिक्लाइन हो रहा है तो राइज किसका होगा? यहाँ पर राइज होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होगा। एंड 1803 ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक कैप्चर्ड दिल्ली। ये दिल्ली को कैप्चर करता है, जो दिल्ली उस टाइम में इंडियंस की या मुगल्स की एक सिंबॉलिक कैपिटल थी। जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया और साथ ही साथ 1803 तक इन्होंने मैक्सिमम रीजनल पावर्स को अपने अंडर एनेक्स कर दिया। देन उसका नेक्स्ट फेज है 1803 से लेके और 1857 तक। दिस फेज कंप्लीटली फॉर यूरोपियंस, फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फेज के अंदर, या इस फेज को हम ये भी कर सकते हैं पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पैरामाउंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीटली इंडिया के जितने भी रीजनल पावर्स थी, चाहे मराठा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मैसूर हो, सबको अपने अंडर अनेक्स कर लिया। चाहे वो सब्सिडियरी अलायंस हो उसके थ्रू हो, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी उसके थ्रू हो, और ओनली इंडिया के अंदर एक ही पावर थी और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पैरामेंट्री फेज था। देन उसके बाद 1857 के बाद 1885 में एक नई डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। देन 1885 से लेके कांग्रेस के डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज फ्रॉम 1885 to 1905, this 1905, this was the modern phase of Indian National Congress, and 1905 to 1915, this is the extremist phase of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड 1905 से लेके 1947 तक का जो फेज था, दिस फेज was completely known as Gandhian era। ये फेज पूरी तरह से गांधी के आसपास या गांधी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पर गांधी के इर्द गिर्द चल रहा था। और गांधी ने यहाँ पर तीन मेजर मूवमेंट स्टार्ट किए। फर्स्ट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in 1920, second was civil disobedience movements in 1930, and third was Quit India movement in 1940.
तो ये आपका मॉडर्न इंडिया का एक ब्रीफ सिलेबस जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको मॉडर्न इंडिया के अंदर स्टडी करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।